बड़ा इन चीज़ों का शौकीन भी हूँ, तो मैं तो कम से कम सब्सक्राइबर को कहूँगा कि किस तरीके से वो हमें ढूंढ के मतलब एक दफ़ा 10 दफ़ा आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी खूबसूरत वीडियो, ये बहुत नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, बहुत नया, और दिल कर रहा है कि बस चुम्मियाँ ले लें आप, जंप मार के अंदर पहुँच जाए और जंप मार के मुझे उन्होंने बोला है कि मैं आपको अच्छे से सिखाऊं, मोटिवेट करूं, जंप मार के अंदर जाके चुम्मियाँ ले रही हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ेका और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है व्हाई दार्जिलिंग ट्रेन इज सो फेमस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है व्हाई दार्जिलिंग ट्रेन इज सो फेमस, इंडिया ट्रेवल दार्जिलिंग। Hello and a wonderful good morning. This time not from Darjeeling anymore. We are where, Udiji? We're somewhere really high. Yes, really high in the mountains up in the sky. We are in Gum right now, and we just arrived at the train station. And by the way, this is the highest train station of all of India, which is at the altitude of 7,407 feet, which is quick math, 2,258 meters. Yay! And it's one of the highest railway stations in India, and it has been built in the 1881, so it's more than 200 years old. And as you can see, there are small trains here that are coming. Yeah. This station is very much renowned all over the world because it's so high up in the mountains, in the Himalayas, and for the Darjeeling railway system, which is special because as you can see, the train tracks are very narrow. I mean, look, super narrow train tracks, and somehow on these super narrow train tracks that go along the road up the mountain, these steam engines are going up and down on this road since the 1800s. Same steam engines that have been going there up and down, same steam engines are going now. So guys, we're now in the museum, open air museum of the Darjeeling Himalayan Railway service, and as you can see, pretty much we have a steam engine and a wagon and some other freight train wagons. And I asked around, a ticket from here to Darjeeling, actually it's a round-way trip from Darjeeling to Gum and backwards, with a diesel engine is 1,000 rupees per person, and with a steam engine is 1,500 rupees. So a little bit on the expensive side. I don't know, we will see if we can hop on a train. If not, that's it. And the interesting thing is that the road all the way from Darjeeling to Siliguri down, which is longer and normally it takes 8 hours because the train goes very slow, it's 1,400 per person. So it's cheaper to go all the way to Siliguri rather than come only to here to Gum and then go back. Interesting business opportunity here in Darjeeling. Yes. Wow, Gigi, looks like they arranged a mountain scene as well. Of course. People are prepared here, man. We are in a UNESCO World Heritage Site. Yes. Right now. Right now, up in the cloud. 141 years old now in 2022. So it was built at the end of the 19th century. That's amazing. Like, I haven't seen something like this. Yes, and the train are still working since that period. I mean, the old steamer engines, they are being repaired, they are being maintained, and they're still working on coal like back in the day. That's cool. That's cool.
Yes. Like just to make a comparison, I think Michael told you about like the price here for the train. The bus is 20 rupees per person to come here. So for the 8 kilometers between Darjeeling and Gum, it's 8 kilometers. So the price is like 30 rupees with the bus And 1500 with the train. Smart. Well, but that's, well, it's World Heritage. I get it, yes. That's true. You have the coolest train, you pay the cost, you've already it. This is insane, guys. That's the train over there. Okay. Let's make some space. Bye bye, train. This is so cool. Bye bye train. So guys, this is our team train from the 1800 looks like. Obviously the carts are not from the 1800s because they are too modern for this. And let me go get inside one of them quick, show you around. Looks nice. Very roomy, very modern seats. And you can see inside the other car as well. Not bad. It's a very cool train. World Heritage train. Oh my goodness. Bye bye Thomas the Tank Engine. Don't forget to come back. And looks like his diesel brother is coming as well after him. Bye bye. So guys, many of you have seen train stations before and many of you have seen trains before, but you don't know why I find this the most coolest train station and the most coolest trains ever in the world. The fact that they are from the 1800s, basically they're 140 years old, and there are steamers that are still working like from that period. As you can see here in the old picture, it's the same steamer as we have it now. This is amazing, this is unbelievable. And also another interesting fact is that this is the narrowest distance in between two railway lines. I think it's called a gauge, a narrow gauge. And for some reason now the steam train tried to interrupt me from my discussion. But nevertheless, this place is amazing. And we actually got a chance to visit the museum and see it around. It's a very nice area, it's a nice museum, it's pretty much well explained. It has things in English and it basically shows you pictures and stuff from back in the day, which is, in my opinion, very nice. Yes. Guys, check out this picture. This is the best spot to visit in Darjeeling and Gum. So, looks interesting, right? But with a little bit of movie magic. Boom shakalaka! Magic of editing. We are at the Bautasya Loop, the place where the train tracks take a loop around this area and then go back down towards Darjeeling.
बादल ही बादल हैं। बहुत गहरे बादल हैं। पूरे शहर में कुछ चादर की तरह साफ है। अच्छा मतलब तो बाहर का भी दिख रहा है कवर्ड है। What's going on? अच्छा फुल ट्रैक में भी Cool. This loop is special because, as you can see, the train tracks, they go this way, then around the whole loop, and then back down here, and then whoosh over here and down into Darjeeling. Basically, this huge loop was built by the British because the incline was too steep and it was not feasible, and the train could not go directly up. So they made a loop around this area, and this way the incline is smaller and the trains can climb to Gum. Goodbye, train! In the local language, Batasia means windy place, and as you can see, around here is getting pretty windy. I mean, the weather is turning like in an instant from cloudy to sunny to cloudy to sunny. It's something I haven't seen ever, but very, very, very nice place. And the memorial you can see behind me, which is actually the most popular picture you can find about Darjeeling on the internet. This memorial is actually commemoration of the Gorkha soldiers who have lost their lives fighting for the sovereignty of the nation since its independence. Choo choo. And with the train in the background, it's a perfect way to say goodbye. Bye guys, see you in the next video. I hope you liked our train journey, and please subscribe, press the like button, do the things that you do, and smash it, destroy it, and help us make more videos. Bye bye. Oh yes, the train, the steamer of Darjeeling in the night. Steamer in the night. La 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 la. Steamer in the night. Steamer in the night. जगह जगह से स्टीम निकल नहीं पूरा स्टीमर ही है ना, धुआं निकल। ओके ये जनाब। अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये। मूवीज़ में भी आप कह रहे हैं कि दिखता है एक आधे सीन में दिख जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं जाती, इतना गौर नहीं कर पाती। इतनी डिटेल में जो मैंने इसको देखा ना, इतना करीब से, ये मैंने आज देखा है और मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो ये अपने आप में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरा जो प्लेस थी वो बहुत ज़्यादा नाइस थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्लीनेस्ट थी, आबो हवा भी बहुत फ्रेश थी। अच्छा मैं एक बात सोच रही हूँ कि इतना मतलब इस तरीके की जो ट्रेन यूज़ हो रही है और इतना इसमें से स्मोक स्ट्रीम निकल रहा है, उसके बावजूद भी आबो हवा आपको बड़ी फ्रेश लग रही है, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा, बड़ा क्लियर लग रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है दार्जिलिंग जो एरिया है, सिटी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ की आबो हवा क्लाउडी, थोड़ा पहाड़ों पे जैसे नहीं होता है क्लाइमेट, और वहाँ के लोग भी मुझे नक्शे वगैरह जो उनके लगे तो वो थोड़े डिफरेंट लगे। आपको पता है जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ पे पोल्यूशन जो है अगर होती भी है, हाँ। अगर होती भी है तो उसको
कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ही लेते हैं। सही। और दूसरी चीज़ है कि अगर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो रही हो तो उसका फ़र्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा इतना क्राउडेड प्लेस नहीं है। हाँ, इन जगहों पे जाहिर सी बात है ना। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टेशन, पहली चीज़ तो ये हाईएस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता था कि इंडिया में अभी तक स्टीम इंजन चल रहा है। किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि कराची में ट्राम्स चलते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे। बहुत पहले किसी वीडियो में जिक्र किया था तो पता चला था केरला में अभी भी ट्राम्स चलते हैं। सही। जो कराची में, जब कराची पाकिस्तान बना था शुरू में, तो यहाँ पर जो पक्के रोड नहीं होते थे ना, तो जहाँ पक्का रोड नहीं होता, सड़क नहीं होती, तो वहाँ ये पटरी बिछती है। अच्छा। फिर उसी पटरी पे ट्रेन चल जाती है। ये छोटा, ये ट्राम का साइज़ है ये वाला। ठीक है जी। ये समझो ट्राम ही है, लेकिन पूरी ट्रेन की तरह का है। स्टीम इंजन लगा दिया गया आगे। तो कहने का मतलब ये है कि कराची में बहुत पहले चलती थी कच्ची सड़क थी, ऊँट गाड़ियाँ, गधा गाड़ियाँ चलती थी, तो गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, ये चलता था यानी ट्राम। ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता था कि स्टीम इंजन अभी भी इंडिया में चलता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इतना पुराना है, 1800 शायद 1881 या 80 ऐसी कुछ है। तो इतना पुराना कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गए। अच्छा, पता है मुझे क्या लग रहा है कि इसके अब तक चलने का रीज़न मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है टूरिज्म के लिए, टोटल टूरिज्म के लिए, ज़्यादातर विजिटर्स के लिए बहुत अच्छा रखा हुआ है। क्योंकि देखें पूरे ब्लॉग बन रहे हैं जब उस पे, तो यकीनन वो एक यूनिक चीज़ हो गई ना। बहुत ही यूनिक नहीं, इस ज़माने में अगर वो पाया जा रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कराची में, ना पाकिस्तान में, कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। भाई आप अंदाज़ा लगा लें, 18वीं सदी में था, 1800 में भी था। अगर फोर्स सपोज चलें 1800 में बना था, तो आप देखिए ना अभी हम कहाँ 2022 में बैठे हैं। आप अंदाज़ा लगा लें। बिल्कुल। अच्छा, वो कह रहे हैं 141 साल या 140 साल हो गए, तो मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। आप समझो 19वीं सदी पूरी लगा लें, फिर हम ये 2022 में, बिल्कुल ठीक है ना। अलग हुए भी, सेपरेशन हुए 150 साल लग रहे हैं। मुझे लग रहा है 150 140 साल तो हो गए। 140 बता रहे हैं, 140 बता। हाँ, तो सही बता रहे हैं। और मैं ये सोच रही हूँ सेपरेशन भी हुए 75 साल हो गए, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं 1800 में था, तो मेरे हिसाब से सेपरेशन से भी काफ़ी अर्सा पहले था, ठीक है ना। जब वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश ने ही इसको बनाया था। अच्छा, लूप जो सिस्टम था पूरा लूप का, जैसे आपने देखा कितनी हाइट पे, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर बिल्कुल वो आपने देखा बिल्कुल नीचाई दिख रही थी। तो वो कह रहे हैं वो जो लूप था वो भी ब्रिटिश दौर में ही बना था, उनके ही ज़ेरे निगरानी बना था। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि अब तक कैसे संभाल के रखा, क्या किस तरीके से मेंटेन करते हैं भाई। मैं टाइम निकाल के, बल्कि मैं क्या टाइम निकाल के, आप लोग मुझे टाइम निकाल के बताइएगा कि ये चीज़ें कैसे मेंटेन रखते हैं। कलर देखकर, उसकी हालत देखकर, उसके ऊपर जिस तरीके से लिखा हुआ था, जिस तरीके का वो दिख रहा था, उसकी बात कर रही हूँ मैं ट्रेन की। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तो शायद अभी ही कुछ अर्सा हुआ होगा उससे बने हुए, लेकिन आपने मुझे बताया कि ना इनका सामान बनता है अब, इनकी तो मैन्युफैक्चरिंग ही खत्म हो गई। ये जो बहुत एडवांस लेवल पे अब तो हम आ चुके हैं। ये जो लोग चला रहे हैं ना, ये टेक्नोलॉजी सिंपल वाली थी, कोयले से चलाना, ठीक है। लेकिन ये कि अब इतना कोयला, इतनी चीज़ों के बजाय लोग डीजल पे चले गए। सही। डीजल के बाद अब तो इंडिया में इलेक्ट्रिक पे ही चल रहा है। सारी ट्रेनें में देखता हूँ कि ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। हमारे यहाँ पे तो डीजल, सोलर पे जा रहे हैं। ये जो वायरिंग लगी होती है ना, हमारे यहाँ तो अभी भी डीजल पे ही चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक डीजल इंजन भी बार बार दिख रहा था मुझे, ठीक है, तो जो बॉक्स टाइप का अलग से जा रहा था। तो ये है कि अभी तक संभाल के रखना, कलर वलर बेहतरीन किस्म का, टूरिज्म होती होगी, आते होंगे जाते होंगे, इस पर छोटा सा एक सफ़र करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक तो बहुत लंबा नहीं, एक छोटा सा, मतलब पूरा एक दुनिया नहीं घुमाता होगा ये, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए रखा, एक्सपीरियंस लेने के लिए। मुझे ऐसा कैसा मज़ा आता है, किस तरह फील होता है। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं सोच रही हूँ, जब पहले सीन में दिखाया गया था इस ट्रेन को, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये ना शॉपीस है। आपने देखा था जब स्टार्टिंग में बिल्कुल दिखाया गया, तो जब इसमें से धुआं निकलना है, स्टार्ट हुआ, ये चलता है इसमें चल रहा है। कहाँ देखने को मिलता है अब? टिकट जब लिए तब मुझे कंफर्मेशन हो गई कि ये चलता है, ये चलेगा। मैं बता रहा हूँ कि अब ये कहाँ चीज़ दिखने को मिलेगी, कहीं भी नहीं होगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि पूरा ना शोपीस की तरह ये रखा है कि लोग आए, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज में जब शामिल है तो मुझे लगा शायद ये बस शोपीस की तरह अब तक संभाल कर इसके बकायजात रखे, और इसका सिस्टम वगैरह तो अब तक चौपट हो चुका होगा। जब उन्होंने कहा ना कि टिकट यहाँ से मिलते, तो वो भी बड़ा प्यारा सा लग रहा था, बिल्कुल ही वही पुराने दौर का। अच्छा, मैं कहता हूँ, मेरे लिए मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के,
बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ा इन चीज़ों का शौकीन भी हूँ। तो मैं तो कम से कम सब्सक्राइबर को कहूँगा कि किस तरीके से वो हमें ढूंढ के मतलब एक दफ़ा 10 दफ़ा आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी खूबसूरत वीडियो, ये बहुत नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, बहुत नया। और दिल कर रहा है कि बस चुम्मिया ले लें आप, जंप मार के अंदर पहुंच जाए और जंप मार के। मुझे उन्होंने बोला है कि मैं आपको अच्छे से सिखाऊं, मोटिवेट करूं, जंप मार के अंदर जाके चुम्मिया दे रही तो चुम्मिया दे दो नहीं सब्सक्राइबर को। अच्छा चले, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी वीडियो हमें सजेस्ट करने के लिए। हमारे मैमो गुमान में भी नहीं होता ये सब हो रहा है और आप हमें ढूंढ कर ला। अच्छा, इनको मैं एक चीज़ से और हैरान हूँ कि हम इतनी वीडियोस देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे मैं देखती रहती हूँ, इनको कैसे पता होता है कि हमने ये नहीं देखी? शायद हम जिक्र नहीं करते या हम बात नहीं करते। असल में जो जहाँ रहते हैं ना, मैंने अक्सर नोट किया है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम या फेसबुक का एल्गोरिदम है तो उस एरिया की चीज़ें ज़्यादा दिखाता है। नहीं, मुझे इंडिया की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं, मैं देखती, मुझे इंटरेस्ट है तो मैं वैसे भी देखती रहती हूँ। लेकिन बेशुमार खजाना है ना, बेशुमार है और उनको पता होता है कि ये इनकी नज़रों से अभी तक गुजरी नहीं है तो इनको ये सजेस्ट करनी चाहिए, तो ये देखें तो देखते हैं फिर ये क्या बोलते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत बड़ा टैलेंट है आप लोगों में। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत अच्छी स्टीम इंजन चलता हुआ, कमाल हो गया। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।